I say Urva, you say. मत करो दीदी मत करो। एक तो ऑलरेडी आप मीम बनकर बैठी हो हर जगह, ऊपर से ये सब। अरे सक्सेस ना सही, शर्म तो आती ही होगी ना। It used to bother me when I used to think I'm being copied because I used to think this whole namaste, like it's not like an act. I genuinely greet people like that, and suddenly it became like a template that every girl was doing. And this wearing Indian clothes at the airport, going with wet hair and all, like it used to irritate me when other girls used to do it. But I realized that my dashaks know it's me, so it's fine. What? Bro, what are you talking about, man? सॉरी उर्वशी दीदी, मैं गलत थी। आप करो आपका आयशे उर्वा यू से। थैंक यू शारा जी ये बोलने के लिए, वरना मुझे तो पता ही नहीं था कि नमस्ते और इंडियन क्लोथ्स पहनना ये आपने इन्वेंट किया। मुझे तो लगा था ये हमारे कल्चर का पार्ट है। मैं भी ना कितनी बेवकूफ थी। Shit. That will you accept anybody like character in Animal, which Ranbir Kapoor played? In your life? I truly believe that if you love someone and someone loves you, the changes will happen. मूवी में तो उसको चेंज कर नहीं पाई, रियल में क्या घंटा कर पाएगी। देखो पहले मुझे लगता था कि मैं डेलुलुलु हूँ, फिर मैंने इनका ये वीडियो देखा। You actually think you can change people? I actually think. You know that that's a young and romantic idea. No, ma'am. I will tell you why. Nobody changes. No. I'll tell you why. I'll tell you the why. older women in this hall are going, nobody changes. No, I'll tell you why. I said that statement is because, like, example, when you grow up with your partner or someone from a younger age, you're still forming a personality. You still are figuring out what you like and what you don't like. And when you grow up together, like suddenly when you remember, you know, your best friend or your partner being a certain way, you know, back in that, like, maybe a decade earlier, suddenly to the person who they are today. Women sitting here in 30s and 40s will definitely believe that you cannot change a man. देखो दीदी आपका जवाब भी ना बिल्कुल आपके एक्टिंग की तरह ही है, बाकी समझने वाले समझ ही गए होंगे। I lost my virginity when I was 26 years old, and I've been intimately involved with a member in your family. Okay. I hope it's not bony. That's all. बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। भाई बेचारे जाह्नवी को शो में बुलाकर उसको जिंदगी भर का ट्रॉमा दे दिया। बेचारी अब अपने ही बाप को शक के नजर से घूरेगी। ये करण जौहर जहाँ भी होता है ना, उधर तो घर टूटना मतलब नॉर्मल हो गया है। MBA चाय वाला का जो फेमस टैग है ना, ये ना अब इस इंसान को दे देना चाहिए। समझ रहे हो? Emotional cheating is worse than physical cheating. Yes. Worse? Tuja. Say. Now what? No, but I mean, you know you're 3 against 1. Say. But I just She's think young. Are you going there or are you standing here? I think no, but they're both bad. How can one be worse than the No, other? physical They're both cheating. I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई बात गई। that's the नहीं रात जाके बात नहीं जाती। बात नहीं जाती। I don't think it's a deal You're breaker. young. No, it's a deal breaker. I don't think it's a deal breaker. No, the deal is broken. No, यार, sometimes ठंड लग जाती है। अरे लेकिन नहीं लगनी चाहिए ना, ब्लैंकेट लगा दो। We are 50. She's in her 20s. She will get into this circle soon. Okay, come on. She'll come. बहुत ही कैजुअल वे था वैसे अपने पतियों के अफेयर्स को डिफेंड करने का। आंटियों नहीं, सच में बिल्कुल आंटी वाली बात की है इन तीनों ने। जाह्नवी यंग है फिर भी ना इन सबसे ज़्यादा मैच्योर है वो। देखो चीटिंग ना चीटिंग होती है, चाहे वो फिजिकल हो या फिर इमोशनल। लोगों के उधर चलता होगा ये सब, लेकिन हमारे इधर ठंड लगने पर हम कंबल ओढ़ते हैं, ना कि किसी और के बिस्तर गर्म करते हैं। ये तो वही पुराने मूवी वाली लॉजिक हो गई, जहाँ हीरोइन को ठंड लगने पर बेचारा हीरो उसको अपने जिस्म की गर्मी देता है, चाहे हीरोइन की डिग्निटी कॉन्सेंट वो सब भाड़ में जाए। मतलब इस उम्र में भी आकर कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है। फिर यही लोग बोलते हैं कि जेनजी को कुछ नहीं आता। हाँ, हमको ना चीटिंग को जस्टिफाई करना नहीं आता, इसीलिए हम बुरे हैं। खैर इनकी भी गलती नहीं है। उधर चीटिंग और ठंड लगना इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुका है कि अब इनको कुछ गलत ही नहीं लगता इन सब में। लेकिन हमारे लिए ये सब गलत है, तो इसीलिए अपनी गंदी सोच अपने तक ही रखो, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और हाँ, सबसे ज़्यादा छोटी उधर जाह्नवी थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मैच्योर वाली बातें उसने ही की। हम तो ऐसे ही उसको ट्रोल कर रहे थे, जबकि दिमाग की ज़रूरत किसी और को थी। खैर अब तुम लोग बेवकूफ़ मत बनना। अगर ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाकी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। टेक केयर एंड बाय बाय।